Hello everyone, welcome back to my channel EduRay. So today we are going to start with exercise 5A of the chapter 5 quadratic equations ICSE class 10 chapter 5 of the textbook Selena Concise class 10 mathematics. So please subscribe to my channel, like the video and share it with your friends as I am going to post such informative videos on ICSE and CBSE class 10 and class 9. So please do subscribe for receiving updates and notification. So let's begin. Question number 1. First one. 3x minus 1 the whole square equals to 5 into x plus 8. So you must have learnt in 9th a minus b the whole square formula. So what is a minus b the whole square formula? It is a square plus b square minus 2ab. There is one more formula. It is not required in this question, but I am then also giving it so that you can recall it. So a plus b the whole square formula. What does it say? A square plus b square plus 2ab. So what's the difference? Here there is minus, so in here there is minus. Here there is plus, so here there is plus. Only this thing is the difference. So please remember this, okay? This is in the form of a minus b the whole square. So how will we write it as 3x a square. So 3x the whole square plus b square 1 square minus 2 into ab. A is 3x. B is 1 equals to 5 into x plus 8. So 3x the whole square is equal to 9x square plus 1 square is 1 minus 2 into 3x is minus 6x equals to 5 into x is 5x, 5 into 8 is plus 40. So 9x square plus 1 minus 6x. So always remember in the questions where we have to prove whether this is a quadratic equation or not, we have to verify like the equation is a quadratic equation or not. Always keep RHS 0, okay, and every term on RHS bring it on left hand side, meaning LHS. RHS means right hand side, LHS means left hand side. So in these types of question, keep RHS 0 and bring all the terms of RHS into LHS. So if we will bring 5x, so sign would change, minus 5x and plus 40 would become minus 40. So 9x square minus 6x minus 5x would be minus 11x minus 40 plus 1 would be minus 39 equals to 0. So now how will we know whether it is a quadratic equation or not? So in the part 1 of this video, if you have not watched it, please do watch it. It is compulsorily important because I have given details of how can we check whether an equation is a quadratic equation or not. So I will give you a little brief of how can we check whether an equation is a quadratic equation or not. So जो भी एक इक्वेशन होता है उसमें जो x टू द पावर है, मतलब एक x एक वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर हमेशा 2 होना चाहिए, ओके और फिर bx टू द पावर 1 प्लस c इक्वल्स टू 0. अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. मतलब जो x है, जो वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर हमेशा 2 ही होना चाहिए. अगर हम ऐसा लिख दे ax3 bx2 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसमें x का हाईएस्ट पावर 3 है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इसमें x का हाईएस्ट पावर 2 है. ये नहीं है क्योंकि इसमें x का हाईएस्ट पावर 3 है. और अगर समझो हम ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 लिख दें, इसमें x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि x का हाईएस्ट पावर हमेशा 2 होना चाहिए, ना कि 2 से ज़्यादा या कम. सो इन दिस इक्वेशन द x हैज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ 2. सो येस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यू कैन राइट इट. आई एम जस्ट राइटिंग येस. So what will you write? You have to write the full statement. Yes, it is a quadratic equation. So now let's do the second question. Question number 1 second. So it says that 5x square minus 8x equals to minus 3 into 7 minus 2x. So 5x square, we will write it as it is. 5x square minus 8x equals to
-3 into 7 is what? -21. -3 into -2x. So -3 into -2x. So minus sign will become plus, and 3 into 2x would be 6x. So here it would be plus 6x. If we multiply minus and minus, it becomes plus. Then I have what else I have told you? Always keep RHS in these type of questions 0. So we will have to bring all these term on LHS. So 5x square minus 8x minus 21 would become plus 21, plus 6x would become minus 6x equals to 0. So 5x square minus 8x and minus 6x. So minus 8x and minus 6x would become minus 14x, plus 21 would remain, which is equals to 0. Now in this equation, x has the highest power of 2, right? X has the highest power of 2. So it is a quadratic equation, क्योंकि जो x की highest power है, जो maximum power है, वो 2 है. So yes, it is a quadratic equation. Now let's solve the third one. Third one is a very important question. X minus 4 into 3x plus 1 equals to 3x minus 1 into x plus 2. So in these type of questions, you can mark it as very important, and you have to remember 2 steps. What? जो सेकेंड ब्रैकेट होता है उसमें 2 टर्म है, राइट? 3x प्लस 3x है और एक टर्म 1 है जो सेकेंड ब्रैकेट है. इसमें भी जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें 2 टर्म है, एक x टर्म है और एक 2 टर्म है. अब जो दोनों टर्म है हमें उसे फर्स्ट ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई करना है. मतलब अगर ये फर्स्ट टर्म 3x, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म लो 3x, उसे पूरा फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो. सो 3x इंटू एक्स माइनस 4. सेकेंड टर्म भी लो प्लस 1 इंटू उसे भी x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 4. ये जो साइन है ना, जो इधर साइन होगा वो इधर ही आएगा. ओके. सो अब इसमें भी वही स्टेप फॉलो करेगी. जो फर्स्ट टर्म है उसे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, जो सेकेंड टर्म है उसे भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो. अब बस हम लोग को स्टार्ट करते हैं. तो 3x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 3x स्क्वेयर. 3x इंटू माइनस 4 माइनस 12x प्लस 1 इंटू एक्स इज x प्लस 1 इंटू माइनस 4 इज माइनस 4. नाउ इक्वल्स टू x इंटू 3x इज 3x स्क्वेयर. x इंटू माइनस 1 इज माइनस x. 2 इंटू 3x इज प्लस 6x प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2. अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था? सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. ये RHS को हमेशा 0 रखने का और RHS के सारे टर्म LHS पे लेके आ जाने का. सो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x माइनस 4. 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x प्लस x हो जाएगा प्लस 6x माइनस 6x हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा. एक और चीज़ याद रखने की, जो भी RHS पे जो टर्म होते हैं जिसका साइन है ना हमेशा चेंज हो जाता है. मतलब वो पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर हम RHS से उसे LHS लेके जाए तो. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो अब 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया. माइनस 12x प्लस x हो जाएगा माइनस 11x माइनस 4 प्लस 2 है ना. माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 2 और प्लस x माइनस 6x हो जाएगा माइनस 5x इक्वल्स टू 0. अब माइनस 11x और माइनस 5x हो जाएगा माइनस 16x और माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इट इज़ नेसेसरी दैट x की हाईएस्ट पावर 2 हो. So that is why it is not a quadratic equation. You have to write the full statement, not a quadratic equation. Let's begin with question number 1, fourth one. Question number 1, fourth. So the question says x square plus 5x minus 5 equals to x minus 3 the whole square. So x square plus 5x minus 5 equals to x minus 3 the whole square. So we will write x square plus 5x minus 5 equals to x minus 3 the whole square. अब 9th में हमने एक फॉर्मूला सीखा था a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab.
ये फॉर्मूला याद होगा आप सबको। अब ये देखो x माइनस 3, यहाँ पे x a है और माइनस 3 b है, तो हम लोग को इसे वैसे ही एक्सपांड करना है a माइनस बी स्क्वायर की तरह। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, LHS वैसा का वैसा लिख दिया इक्वल्स टू, अब RHS है, हमें उसे इस तरह एक्सपांड करना है। तो a यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b यहाँ पे 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाता है प्लस 9। उसके बाद माइनस 2ab, सो माइनस इधर 2 इंटू a है x और b है 3, सो वी विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 तो LHS था, अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा माइनस 6 और x, सो माइनस 6x। सो अब हमें वैसे ही करना है, RHS को 0 लेकर आना है, तो हम जो भी ये है वो LHS पे लेके आ जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6x, एक्स स्क्वायर कैंसिल और 6x प्लस 5x हो जाता है 11x माइनस 9 माइनस 5 हो जाता है माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, x टू द पावर 1, क्या x टू द पावर 2 है, नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ लेट्स सॉल्व द फिफ्थ सम। फिफ्थ सम सेज 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 2x माइनस 5 द होल स्क्वायर। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला आएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर का, जो मैंने ऊपर बताया ना a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला। आपको जो 9th स्टैंडर्ड में अपने फॉर्मूला सीखे थे वो बहुत याद होने चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि वो पूरे 10th में बहुत काम आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएंगे, वो आगे का चैप्टर है। सो लेट्स फर्स्ट डू दिस। सो 7x क्यूब को वैसे ही लिख देंगे 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10, LHS वैसे ही लिख दिया इक्वल्स टू, अब a स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर का क्या है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x द होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 द होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 5, ये हो गया। उसके बाद 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, सो माइनस 20x। नाउ हमें वापस RHS पे 0 रखना है और बाकी सारे टर्म LHS पे। 7x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 20x, ये हो जाएगा। सो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर क्या हो जाता है माइनस 6x स्क्वायर, 7x क्यूब ऐसे ही रहेगा 7x क्यूब, बिकॉज जो 2 है वो 2 से ही होता है। सो 7x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और 20x है, सो प्लस 20x और माइनस 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x टू द पावर 2 है, पर फिर भी इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई इज़ इट नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो फिर एक कंडीशन है कि x का हाईएस्ट पावर 2 ही होना चाहिए, 3 नहीं हो सकता, इसलिए इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इन दिस इक्वेशन जो x का हाईएस्ट पावर है वो 3 है, 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा है। So this is a polynomial, not a quadratic equation. So now let's begin with question number 1, sixth one. The question says x minus 1 the whole square plus x plus 2 the whole square plus 3 into x plus 1 equals to 0. So यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये a minus b का होल स्क्वायर है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अब इन दोनों के फॉर्मूलाज है। a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने अभी आपको 4th क्वेश्चन में बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, और a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो अब हम देखेंगे x माइनस वन. सो x माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस x प्लस टू द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0. सो x माइनस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर, सो प्लस वन स्क्वायर माइनस टू ए बी, सो माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन प्लस एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू ए बी, सो टू इंटू एक्स इंटू टू विच इज इक्वल्स टू 0. सो नाउ एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस वन, वन का स्क्वायर वन रहता है, माइनस टू इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर 4 प्लस टू इंटू टू 4x इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x प्लस 2x 4 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे जो x का हाईएस्ट पावर है वो 2 है, x का हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो येस, it is a quadratic equation. Let's begin with question number 2. So question number 2 says, let's see the first one. X equals to 5 is the solution of the equation. अब equation क्या है, x square minus 2x minus 15 equals to 0. अब जो भी equation होता है ना, आप उसे ऐसे लिख सकते हो, fx equals to fx. ये रिमाइंडर और फैक्टर थियरम जो चैप्टर 8 है ICSE क्लास 10 में, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा लिखना चाहिए fx, क्योंकि x की कुछ वैल्यू होती है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी हुई है 5. तो इसे आप रिमेंबर करना, जो भी इक्वेशन है इसे fx लिख दो. ओके, सो अब x की सोल्यूशन 5 दिया हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना, जो x5 सोल्यूशन है हमें उसे पुट करना है. जो x इक्वल्स टू 5 है हमें उसे x की जगह पे पुट करना है, और हमें देखना है कि अगर हम x की जगह पे पुट करते हैं तो क्या वो इक्वल टू 0 आता है. अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो फिर वो सोल्यूशन है. तो पहले मैं पूरा करके दिखाती हूँ, फिर आपको और बताती हूँ. सो एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे 5 पुट कर दो, 5 स्क्वायर माइनस 2x, 2 की जगह पे x की जगह पे वापस 5 पुट कर दो, सो माइनस 2 इंटू 5 माइनस 15. अब ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर इज 25, माइनस 2 इंटू 5 इज माइनस 10 माइनस 15, सो 25 माइनस 10 माइनस 15 इज माइनस 25. सो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0. ये LHS है, और जो 0 था ये 0 भी RHS है. सो LHS, ये LHS इज इक्वल टू RHS, राइट. इसका मतलब जो x इक्वल्स टू 5 है इज़ अ सल्यूशन. अगर समझो 0 इक्वल्स टू ये, अगर समझो कुछ और आ जाता, लाइक 1 इक्वल्स टू 0, लाइक या माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो फिर वो सल्यूशन नहीं होता. अगर सल्यूशन है तो फिर वो सेटिस्फाई करना चाहिए. LHS हमेशा RHS से इक्वल होना चाहिए. 0 हमेशा 0 से इक्वल होगा तभी वो एक सल्यूशन होगा. लाइक अगर वो x इक्वल्स टू 5 सल्यूशन है तो दिस शुड बी इक्वल टू 0. दैट इज़ कंपल्सरी. ओके, नाउ लेट्स डू द सेकेंड वन. सेकेंड वन सेज x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड जो f ऑफ x है वो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इक्वल्स टू 0. हमें बस x की जगह पे माइनस 3 डाल देना है. सो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 3 प्लस 9. सो ये RHS है, ये LHS है. सो LHS इज इक्वल टू अब माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, सो 2 इंटू 9 माइनस 7 इंटू माइनस 3, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, 7 इंटू 3 इज 21, सो प्लस 21 प्लस 9, सो 2 इंटू 9 इज 18 प्लस 21 प्लस 9. सो दिस वुड बी इक्वल टू 21 प्लस 9 इज 30 और 30 प्लस 18 इज 48. सो LHS इक्वल्स टू 48. सो और RHS क्या था, RHS इक्वल्स टू 0. सो LHS इज not equal to RHS because 48 is not equal to 0. Hence, minus 3, x equals to minus 3 is not a solution, okay? So, let's start with question number 3. It says, if root 2 upon 3 is the solution of equation
If root 2 upon 3 is solution, it means that x is equals to root 2 upon 3. And what is the equation? Equation means f of x equals to 3x square plus mx plus 2 equals to 0. So it is given in the question that x is equals to root 2 upon 3. So we have to do nothing but just substitute the value of x. इसका मतलब है कि जो x दिया हुआ है ना उसे x के अंदर डाल दो. So equals to 3 इंटू, अब ये क्या है, रूट 2 अपॉन 3 मतलब x का स्क्वायर. सो रूट 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस m x है, x की जगह उसकी वैल्यू डाल दो, रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब ये जो अगर रूट है और स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाता है, बिकॉज रूट का स्क्वायर इज नथिंग बट द ओरिजिनल थिंग. सो 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस m इंटू रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो 3 कैंसिल, सो इक्वल्स टू 2, यहाँ का भी 2 इधर कर दो, 2 प्लस 2 प्लस m 2 रूट 3 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू 2 रूट 3 इक्वल्स टू, अभी जो 4 था ये अगर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4. ठीक है. सो नाउ इट विड बी m, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाके डिविजन में हो जाएगा. सो m इक्वल्स टू -4 अपॉन डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 अपॉन 3. सो इक्वल्स टू m इक्वल्स टू -4 इंटू रूट 3 upon root 2. So now we will multiply, we will rationalize this. In grade 9 rationalization was there. So what we will do, we will multiply it by root 2 in numerator also, denominator also. Okay, so it will become m equals to -4 into root 3 into root 2 upon root 2 into root 2 is nothing but 2. So 2 ones are and 2s are. So m equals to -2 and root 3 into root 2 is root 3 into 2. So m is equals to -2. 3 into 2 is 6. So -2 root 6. So this is the answer of question number 3. So now let's begin with question number 4. It says that 2 upon 3 and 1 are the solutions of equation. So one of the solution is 2 upon 3 and the second solution is 1. And what is f of x means the equation is mx square plus nx plus 6 equals to 0. And then they have written we have to find the values of m and n. So अभी इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, पहले इस इक्वेशन में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है x की और दूसरे में ये वैल्यू. तो पहले ये करते हैं, उसके आगे मैं आपको बताती हूँ. तो फर्स्ट में वी विल डू m, मतलब जब x इक्वल्स टू 2 अपॉन 3. सो वी हैव टू राइट व्हेन x इक्वल्स टू 2 अपॉन 3. सो m की m x स्क्वायर मतलब 2 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस n इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू m अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 अपॉन 3 n प्लस 6 इक्वल्स टू 0. अभी हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है. सो 9 3 1 तो एलसीएम 9 हो जाएगा. सो 4m अपॉन 9 प्लस 2n इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है, तो हमें डिनोमिनेटर में 9 चाहिए, प्लस 6 इंटू 9 और 1 इंटू 9 क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 9 चाहिए. तो क्या हो जाएगा 4m प्लस 3 इंटू 2n इज़ वॉट 6n. 6 इंटू 9 इज़ 54. अब यहाँ पे पूरा 9 आएगा इक्वल्स टू 0. तो अभी 9 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा. सो 4m प्लस 6n प्लस 54 इक्वल्स टू 0. ये है इक्वेशन नंबर 1. अब हमें जो x की दूसरी वैल्यू मिली थी 1, हमें उसे सब्सटीट्यूट करना है. सो व्हेन x2 इक्वल्स टू 1, सो m का यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस n 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. सो ये हो जाएगा m because m into 1 is m plus n plus 6 equals to 0. अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो m यहाँ पे 4 है, तो इस पूरी इक्वेशन को ना 4 से मल्टीप्लाई करो. इफ़ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई बाय 6 ऑल्सो, पर 4 थोड़ा छोटा नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन ईजी होगा, इसलिए मैं इसे पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ.
तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4m प्लस 4n प्लस 6 इंटू 4 24, 0 इंटू 4 इज ऑलवेज 0। सो ये इक्वेशन 2 है। अब इसे इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो -4m माइनस 6n माइनस 54 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन बन गए। सो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। फिर 4n माइनस 6n कितना होता है, 4n माइनस 6n हो जाता है -2n, माइनस 54 और माइनस 24 हो जाता है -30 इक्वल्स टू 0। सो अगर हम देखें -2n वुड बी इक्वल टू -30 को उधर लेके जाएंगे तो +30। सो n इक्वल्स टू -15, तो n की वैल्यू आ गई -15। अब जो ये इक्वेशन आया था ना उसमें n की वैल्यू डालनी है हमें, मतलब आई विल शो यू। सो अभी हमें n की वैल्यू क्या आई -15। अभी जब हमने जो x था, जब हमने 1 सब्सटीट्यूट करा था तब हमें एक इक्वेशन आया था, वो था m प्लस n प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में हमें n की वैल्यू डालनी है। सो m -15 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो m -9 इक्वल्स टू 0। सो m इक्वल्स टू 9। सो हमें दोनों वैल्यू मिल गई, m इक्वल्स टू 9 और n इक्वल्स टू -15। So this is the answer of question number 4. Let's start with question number 5. So question number 5 says that if 3 and -3 are solutions, so x equals to 3 है और x equals to -3 है, our solution of equation f of x equals to ax square plus bx minus 9 equals to 0. Find the values of a and b. So ये question is similar to question number 4. So I want you all to do this as homework, and if you do not get the answer, please write it in the comment section. I will make a video solving this question, but do try this question on your own. So please like the video, share it with your friends and family, and subscribe to my channel EduRay to stay updated and receive notifications when I post a video, because soon I'm going to post the next part of the chapter of quadratic equations in which I will solve exercise 5b. So do subscribe. Thank you.